فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت و بزرگی، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ جس نے یہ سارا جہان بنایا اور اس عالم کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کا شرف دیا، اور امت محمدیہ میں بھی توحید والی جماعت ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم جتنے بھی بڑائی اور توصیف بیان کریں وہ کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام،
پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، جیسا کہ ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیسرا ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر ہونے والی بدعات کا ازالہ آپ کے سامنے کیا، اور وہ جو بڑی بدعت ہے جسے جشن عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، آج بھی اسی کے تعلق سے کہ اصل معیار کیا ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ایسا کون مسلمان ہے، ایسا کون مومن ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کائنات میں محمد رسول اللہ سے پہلے خود اپنے آپ کو بھی زیادہ بڑا اور خود اپنے سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ کامل ایمان والا مومن نہیں ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مومن اور ایمان کے پکے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے راستے میں چل رہے ہیں، اور اچانک سے حضرت عمر کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس عالم کے اندر، اس دنیا میں اگر عمر کسی سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول اپنی جان کے بعد۔ یاد رکھنا حضرت عمر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، وہ عمر کتنے بڑے صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جس گلی کا راستہ اختیار کر لے، جس راستے کو اختیار کر لے، اس راستے سے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ عمر کہ جس کے آنے سے، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کو لانے سے پہلے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام چھپ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، جب حضرت عمر آئے اسلام لے کر کے تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول آپ چلیے اور خانہ کعبہ کے اندر سجدہ ریز ہوئیے، سجدے خانہ کعبہ کے اندر ہوں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں کس کی ماں نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے اور کس کے کلیجے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکے۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، لیکن اپنی جان کے بعد، یعنی میں سب سے زیادہ محبت تو خود سے کرتا ہوں پھر آپ سے کرتا ہوں۔ ایمان کس کی اور مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ رسول سے سب سے زیادہ محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ واللہ لا یؤمن، اللہ کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر تم ابھی مسلمان نہیں ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول
میرا ایمان مکمل کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز سمجھو گے، جب مجھ سے پیار کرو گے، مجھے سب سے زیادہ محبت کرو گے، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اب کہیں جا کر کے بات بنے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ محبت کا معیار، اور اسی کی طرف محبت کا اصل معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہم بھی کرتے ہیں رسول سے اور صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اور ان کے محبتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ محبت کے دعوے نہیں کیا کرتے تھے، وہ محبت میں ان کی اطاعت کیا کرتے تھے اور محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہم عمل کو چھوڑ کر کے صرف دعوے کیا کرتے ہیں۔ دعوے کرنے سے محبت نہیں ہو جاتی۔ میں آپ سے لاکھ دعوے کرتا رہوں کہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ جو بات کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، کیا یہ محبت ہے؟ آپ جس رخ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں میں اس کے برعکس جاتا ہوں، میں اس کے خلاف جاتا ہوں، کیا یہ محبت ہے؟ نہیں میرے بھائیو یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اگر مجھے آپ سے محبت ہوتی تو آپ کے نقش قدم پر میں آپ کو چلنے کی کوشش کرتا، میں آپ کی وہ صحیح باتیں مانتا جو آپ نے بتائیں۔ یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے دعوے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے اندر سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ ہے اصل معیار محبت کا۔ سورہ آل عمران آپ کھولیں گے، سورہ آل عمران میں آیت آپ کو ملے گی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اے لوگوں اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میری باتوں کو ماننا پڑے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہی معیار محبت رسول کا صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ حضرت سعد ابن معاذ دیکھیے آج ہماری بات اور رسول کی بات میں جب تکرار ہوتی ہے تو ہم اپنی بات کو بڑا کر لیتے ہیں، اپنے امام کی بات کو بڑا کر لیتے ہیں، اپنے مولوی کی بات کو بڑا کر لیتے ہیں۔ یہاں تو حضرت ثابت بن قیس کا کیا معاملہ ہے یہ حضرت سعد ابن معاذ سے سنیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی ہیں۔ سعد ابن معاذ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اے صحابہ کرام مجھے اپنا ایک پیارا ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے، ثابت بن قیس کا کیا حال ہے؟ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے رسول ثابت بن قیس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سعد ابن معاذ کو بھیجا اور کہا کہ اے سعد ابن معاذ ثابت بن قیس کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں آقا دو جہاں نے بلایا ہے، اللہ کے رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بات کو اللہ کے رسول کی بات سے کس قدر آگے بڑھاتے ہیں اور ثابت بن قیس کے حال کیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں؟ حضرت سعد ابن معاذ نے جب کہا اللہ کے رسول نے آپ کو یاد کیا ہے، ثابت بن قیس کہتے ہیں اے میرے ساتھی میں اللہ کے رسول کے پاس اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ ایمان والو کہیں تمہاری آوازیں اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی نہ ہو جائیں، اور اے میرے ساتھی سعد ابن معاذ تمہیں تو معلوم ہے کہ ثابت بن قیس جب بولتے ہیں یعنی جب میں بات کرتا ہوں تو میری آواز ذرا اونچی ہو جاتی ہے، میری آواز بہت زیادہ بلند ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس کیسے جاؤں؟ جب اللہ کے رسول سے میں
मुलाकात करूंगा, मैं अल्लाह के रसूल से बातचीत करूंगा, और अल्लाह के रसूल की बात पर कहीं मेरी बात ऊंची ना हो जाए, मेरी आवाज ऊंची हो जाएगी। और अगर किसी मोमिन की, किसी बंदे की अल्लाह के रसूल की बात से, आवाज से ऊंची आवाज हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की वजह से, कि आवाज ऊंची होने की वजह से, सारे के सारे आमालों को जाया और बर्बाद कर देगा। मेरे साथी, मैं इसलिए अल्लाह के रसूल के पास नहीं जा रहा हूं कि मेरी आवाज के अल्लाह के रसूल की आवाज को पस्त ना कर दे। सिर्फ इतनी सी वजह की बात है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। आज हम अपनी औलादों की जायज तो क्या नाजायज तमन्नाओं को भी पूरा करते हैं। आज हम अपने घर वालों की हर तरीके की जायज तमन्ना, बल्कि नाजायज तमन्नाओं को भी पूरा करते हैं। हर तरीके की बातें उनसे सुनते हैं, लेकिन हम यही कह के छोड़ देते हैं कि बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। कह दिया तो क्या हुआ? मेरे साथियों, अल्लाह के रसूल के पास सहाबी रसूल बैठे हुए हैं, नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह के रसूल के पास साथी ने नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने दर्स दिया, दर्स में सहाबी रसूल बैठे रहे। जब थोड़ी देर हो गई तो ये अपने घर जाते हैं। इनकी बीवी कहती है, क्या तुम मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तुम रसूल से तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? तुम मोहम्मद की बातों को सुनते रहते हो, न बच्चों की फिक्र है, न अपनी बीवी की फिक्र है। ये सहाबी रसूल सारा माजरा अल्लाह के रसूल के पास आकर के दोबारा सुनाते। माजरा क्या है? अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मुझसे बड़ी गलती हो चुकी है, आज मुझसे गलती हो गई, आज एक बहुत बड़ी खता हो गई। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, ऐ मेरे साथी क्या खता हो गई? फरमाया सहाबी रसूल ने कि अल्लाह के रसूल, आपके पीछे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपका दर्स सुना, इतनी देर हो चुकी थी। मेरे अल्लाह के रसूल, जब मैं घर गया तो मेरी बीवी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद की बकवास सुनते हो, मोहम्मद की बातों में लगे रहते हो? और अल्लाह के रसूल, आप जानते हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ, सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। आपके शान में कि कोई इंसान बेअदबी कर दे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। जब मेरी बीवी ने कहा कि मोहम्मद की बातों को सुनते रहते हो, उनसे तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? अल्लाह के रसूल, मेरे दरमियान में, मेरे आंगन में, मेरे घर के बरामदे में नहर करने वाला खंजर पड़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल, उस खंजर को मैंने उठा करके अपनी बीवी के पेट में दे मारा। मुझे आपकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने उस ऊंट को नहर करने वाला खंजर अपनी बीवी के पेट में दे मार दिया। मेरी बीवी वहीं तड़प करके मर गई। अल्लाह के रसूल, आज मुझसे ये गलती हो गई है, अगर इस पर कुछ सजा बनती है तो अल्लाह के रसूल, गुलाम हाजिर है, लेकिन मैं आपकी शान में बेअदबी नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे साथी जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने वाले का अंजाम यही होता है, और अल्लाह के सिपाहियों से कभी बदला नहीं लिया जाता। यहाँ एक बेअदबी के रसूल की बातों को सुनते रहते हो, और सहाबी ने खंजर बीवी के पेट में दे मारा। हम कितनी बेअदबियां करते हैं, माथों पर वो ला इलाहा इल्लल्लाह की पट्टी भी लगा रहे हैं, फजर की नमाजें गोल हो रही हैं, जोहर की नमाजें गोल हो रही हैं, असर की नमाजें गोल हो रही हैं, और झंडों पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की झंडियां भी लग रही हैं। फिर जब शाम हो जाती है, उन झंडों को पैरों तले रौंदा जाता है, पैरों तले रौंदने के बाद उन झंडों को कब्रिस्तानों में डाल दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत नहीं रहती है। वही रसूल, जिस रसूल को गानों से इतनी नफरत थी, अपने कान बंद कर लिया करते थे, उसके जश्न पर आज हम नचनियों को बुला करके डांस कराते हैं। हम इस्लामी लिबास पहन करके और उस रसूल का नाम लेकर के नचनियों को बुला करके, डांसरों को बुला करके मुन्नी बदनाम के गाने भी गहलवाते हैं, और उनसे न जाने कितने काम कराते हैं, और रात में हम उनकी नाच भी देखा करते हैं। जिस रसूल को इन चीजों से नफरत थी, उसके पैदाइश के जश्न पर हम कैसे काम अंजाम देते हैं? क्या ये मोहब्बतें होनी चाहिए थी? नहीं। फत्तबिऊनी, अल्लाह के रसूल की इत्तबा करनी चाहिए थी, अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी चाहिए थी। हजरत उमर का बेटा आया घुड़सवारी सीख करके और कहा कि अब्बा, खाने में क्या बना है? कहा कि अद्दुब्बा, लौकी बनी हुई है। उसको जो लौकी लंबी वाली जो लौकी रहती है, कहा कि लौकी बनी हुई है। बेटे ने मुंह से उड़ा, कहा कि क्या बना है? कहा कि ये भी कोई खाने वाली चीज है?
बस इतना ही कह सका था, ये भी कोई खाने वाले। हजरत उमर को देखता है कि मेरा बाप तलवार की म्यान पर अपने हाथ को लहरा रहा है और कहता है कि अब्बा खा रहा हूं मैं, आप तलवार मत निकालिए। हजरत उमर ने देखा कि बेटे ने कहा खाया। खाना खाने के बाद हजरत उमर ने क्या फरमाया, ए मेरे बेटे, तुझे मालूम नहीं है ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खाना है, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश किया करते थे और खाया करते थे। आज तूने इस खाने से मुंह सुमोड़ा है, सुमोड़ दिया। आज के बाद अगर तूने इसे खाने से इनकार किया तो मेरी तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी। ये होती है रसूल से मोहब्बत। और हमारी माए बहनें भी सुन लें, जो छतों पर चढ़ करके फूल बरसाती हैं और छतों पर चढ़ करके मुआशरे का और समाज का खुशामदीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न पर किस तरीके के ढोल ताशे देखती और करती हैं, रसूल से मोहब्बत किस कदर होती है। आइए मैं एक लेडीज का वाक़या आपको सुनाऊं, और वो लेडीज कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की माँ है। किस कदर रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। ये किसकी बेटी है, अबू सुफियान की। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, सरदाराने कुरैश के सरदार हैं, कुरैश के लोगों के सरदार हैं। ये अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। उम्मे हबीबा अल्लाह के रसूल की वाइफ है। अबू सुफियान अपनी बेटी के घर जा रहे हैं, दस्तक देते हैं। उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, देख गेट के सामने मेरा बाप खड़ा हुआ है। अंदर जाती हैं और उस बिस्तर को, जिस बिस्तर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, जिस बिस्तर पर आप आराम करते हैं, उस बिस्तर को फोल्ड करके रख देती है। अबू सुफियान ने देखा कि बेटी, क्या यही संसार मैंने तुम्हें सिखाए हैं, क्या यही अदब मैंने तुम्हें सिखाया है। बेटी के घर जब बाप आता है तो बिस्तर लगाती है, खाने पीने का इंतजाम करती है। ए मेरी बेटी, तुमने तो बिस्तर को फोल्ड कर दिया, तुमने बिस्तर को इकट्ठा करके रख दिया। ए मेरी बेटी उम्मे हबीबा, क्या ये बिस्तर नापाक था जिसकी वजह से तुमने भी बिस्तर को इकट्ठा करके रख दिया। उम्मे हबीबा कहती है, ये मोहब्बत रसूल से होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत और माँ बहनों की मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के सहाबे साहबियात की मोहब्बत को देखिए। उम्मे हबीबा कहती हैं, ए मेरे अब्बा, ये बिस्तर नापाक नहीं था, ये बिस्तर तो इतना पाक था कि इस बिस्तर पर जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह आराम फरमाते हैं। ये बिस्तर तो वही बिस्तर है जिस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का शौहर आराम करता है, आयशा का शौहर आराम करता है, फातिमा के अब्बा इस पे आराम करते हैं। ए मेरे अब्बा, ये बिस्तर तो नापाक नहीं है, लेकिन आने वाला इंसान जरूर नापाक है। ए मेरे अब्बा, तू मुशरिक नजिस इंसान है और तू नजिस, तू नापाक, इस पाक बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पाक बिस्तर पर मेरा नापाक बाप बैठ जाए। कैसे लग रहे हैं हमारी मोहब्बत में और रसूल के सहाबा और सहाबियात की मोहब्बत में। अपने सगे बाप को उस बिस्तर पर नहीं बैठने दे रही है। आज हमारा आप में मालूम है, हम अपने बिस्तर पर लेट करके आराम करके उस रसूल की कितनी तौहीनें करते हैं और किस कदर उसकी सुन्नतों की तौहीन करते हैं, हालात भी मालूम है। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल से किस कदर मोहब्बत करते हैं कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर इस कदर रोया करते थे, इस कदर रोया करते थे कि लोगों ने मशवरा किया कि हजरत बिलाल को मुल्क शाम भेज दिया जाए, यहाँ से वापस कर दिया जाए। अगर ये यहाँ रहेंगे तो रोज़े रसूल पर रो रो करके अपनी हालत को खराब कर लेंगे। हजरत बिलाल का आपने किस्सा सुना है। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल के बाद इस कदर परेशान रहते थे और कहते, मुझे छोड़ करके क्यों चले गए। ऐ अल्लाह के रसूल, इस गुलाम से कौन सी खता हो गई, मुझे छोड़ करके क्यों चले गए। रोज़े रसूल पर हर दिन रोया करते थे, परेशान रहते थे। सहाबे किराम ने मशवरा किया और कहा कि बिलाल को कुछ महीने के लिए बाहर भेज दिया जाए, मुल्क शाम भेज दिया गया। हजरत बिलाल को 6 महीने हो गए। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आते, वो सहाबा इकराम कैसे साहबी थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ख्वाब में आया करते थे। आज हमें कभी रसूल ख्वाब में आए, हमने कभी सुन्नतों को जाना नहीं, पहचाना नहीं, हमें रसूल ख्वाब में कैसे आए। और रसूल ख्वाब में आते हैं और कहते हैं, ऐ बिलाल तू मेरा मदीना छोड़ करके क्यों चला गया, ऐ बिलाल तू मेरी गुर्बत छोड़ करके क्यों चला गया, ऐ बिलाल तू मदीने वापस आ जा, तू रोज़े
रसूल के पास वापस आ जा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत बिलाल अपने घोड़े को दौड़ा देते हैं। मुल्क शाम के मुसलमान कहते हैं, ए बिलाल कहाँ जा रहे हो? बिलाल कहते हैं, ए लोगों मेरे घोड़े को ना रोको, मुझे मेरे आका बुला रहे, मुझे मेरे काली कपड़ी वाले बुला रहे। घोड़े को दौड़ा देते हैं और मदीने पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद क्या कहते हैं, ए लोगों मुझे फातिमा से मिलवा दो, क्योंकि रसूलुल्लाह की शक्ल और फातिमा की शक्ल बहुत ज्यादा मैच किया करती थी। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी को देखूंगा तो अपने रसूल को याद कर लूंगा। लोगों ने बताया कि बिलाल आप मदीने से बाहर थे, मुल्क शाम में थे और आज इंटरनेट का जमाना नहीं था। फरमाया कि बिलाल आपके आने से चंद दिन पहले हजरत फातिमा भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं। हजरत बिलाल ने किसी तरह अपने आप को संभाला। कहते हैं कि अभी मैं रसूल का दम नहीं भूल पाया था, हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी। कुछ देर के बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। लोगों ने कहा कि बिलाल आप 6 महीने हो गए हैं, हमने रसूल के जिंदगी वाली वो अजान जो तुम दिया करते थे हमने नहीं सुनी। ए बिलाल अजान पढ़ दो। रसूल से मोहब्बत किस कदर होती है, देखिए बिलाल क्या कह रहे हैं, ए लोगों आज मुझे अजान पढ़ने के लिए ना कहो। क्यों? ए बिलाल तुम्हें क्या हो गया, तुम अजान क्यों नहीं पढ़ोगे? लोगों से बिलाल ने कहा, ए लोगों मेरे साथियों, जब अल्लाह के रसूल हयात थे, अल्लाह के रसूल जिंदा थे तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए अपने रसूल को देखा करता था। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूँगा तो किसका चेहरा देखूंगा? हजरत हसन और हुसैन को बुलाया गया। हजरत हुसैन कहते हैं, ए बिलाल तुम हमें तो जानते होगे, हमें तो पहचानते होगे। और मेरे नाना ने कहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, जो मेरे नवासों का दिल तोड़ता है उसने गोया कि मेरा दिल तोड़ा है, और जो मेरे नवासों की बात को मानता है उनसे मोहब्बत करता है तो गोया कि मुझसे मोहब्बत करता है। हम आपसे कहते हैं आज अजान पढ़ दो। हजरत बिलाल ने कहा, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम रसूल के नवासे हो, अगर तुम कहते हो तो मैं अजान पढ़ता हूँ। हजरत बिलाल मस्जिद नबवी के मीनारे पर जाते हैं और अजान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही हजरत बिलाल ने अजान देना शुरू की, मदीने के अंदर वही नगमे कयामत दोबारा बर्पा हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद में साहबा इकराम दाढ़े मार कर रोने लगे, औरतें भी छत पर चढ़ गई। 6 महीने पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना याद आने लगा। चिड़िया भी अपने दरख्तों पर आराम से बैठ गई कि 6 महीने पहले हजरत बिलाल की आसान कौन सुनेंगे। हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत बिलाल ने अल्लाहु अकबर की सदा लगाई तो मदीने के लोगों ने मस्जिद नबवी को खचाखच भर दिया। हजरत बिलाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। उसके बाद जब हजरत बिलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आते हैं और वहीं पर नजर पहुंचती है, कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल की जिंदगी में जब ये कलमा कहते थे, रसूल को देखा करते थे। आज वही कलमा अदा कर रहे हैं लेकिन रसूल को मौजूद नहीं पा रहे। हजरत बिलाल को गशिया जाती है, हजरत बिलाल बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। ये मोहब्बत रसूल होती है। मेरे साथियों, ऐसी मोहब्बत हमें करने की जरूरत है, ऐसी मोहब्बत हमें अपनी जिंदगी के अंदर लाने की जरूरत है। वो साहब इकराम किस कदर मोहब्बत किया करते थे। हजरत बिलाल को गशी आ गई, लोगों ने अजान को पूरा किया, छींटे पानी के मारे गए। हजरत बिलाल ने फौरन कहा, मेरे रसूल से मुझे मिलाओ, मेरे रसूल से मुझे मिलाओ। लोगों, मैंने तुम्हें अजान देने के लिए मना किया था। मेरे साथियों, इस कदर मोहब्बत साहब इकराम को हुआ करती थी। वाकयात बहुत बड़े बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर के रुक जाती है कि फत्तबिऊनी, हमें रसूल से मोहब्बत का मायार इत्तबा में दिखाना चाहिए। जिस कदर साहब इकराम इत्तबा किया करते थे, जिस कदर मोहब्बत किया करते थे, वैसे ही इत्तबा भी किया करते। आज हमारी इत्तबा में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब इकराम की इत्तबा में जमीन और आसमान का फर्क है। आज अगर मैं कह दूं हमारे रवैयों में और गैर मुस्लिमों के रवैयों में अगर कोई फर्क भी नहीं है तो बिल्कुल ये मेरी बात गलत नहीं है। जिस तरीके के गैर मुस्लिमों के रवैये अपने देवी देवताओं के लिए हैं, वैसे ही आज हमारे नाम नहाद मुसलमानों के रवैये अपने रसूल, अपने साहब इकराम, अपने दीन के लिए है। मेरे साथियों, अगर हमारे इस रवैये के साथ जन्नत का हकदार बनने के हम
अगर दावे करते हैं तो ये गलत नहीं होगा कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जन्नत के अंदर जा सकते हैं। क्यों? जो रवैये हमारे हैं, जो तरीके इस्लाम को लेकर के हमारे हैं, जो चढ़ावे चढ़ाना, जो जश्न निकालना, जो मीलाद मनाना, जिस तरीके की चादर चढ़ाना और ये तमाम के तमाम तरीके हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में भी पाए जाते हैं। अगर आज हम जन्नत के अंदर जाएंगे तो हमारे गैर मुस्लिम भी जाएंगे, और यकीनन अगर वो जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे तो ये नाम निहाद मुसलमान जो इस तरीके की फजर छोड़ करके, नमाजें छोड़ करके, रसूल की इत्तबा छोड़ करके सिर्फ दावे करके जन्नत में जाना चाहता है, खुदा की कसम ये जन्नत में नहीं जा सकते। ये रसूल से मोहब्बत नहीं हो सकती सिवाय इत्तबा के रसूल की मोहब्बत का तकाजा कोई और नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, इस्लाम पर हमें जिंदा रख, हमें रसूल से मोहब्बत के साथ साथ हमें इत्तबा रसूल भी हमें नसीब फरमा, और जो हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।